Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learn English with Us. In today's video, we're going to learn about unit number 5, the Madina Charter, translation with explanation. So, let's get started. The Madina Charter. It's on page number 41. What is a charter? Charter is just like an agreement. This is a type of agreement in which all the important acts, all the important elements are written, which are very important for the creation of peaceful coexistence. So on this very page number 42, you can see peaceful coexistence. This, for the creation of peaceful coexistence, we need religious harmony, humanity and justice, patience and tolerance, love and peace, freedom and safety. All these are very important and most important ingredients for the creation of peaceful coexistence. So in this chapter, we are going to learn about peaceful coexistence, how people can live in a society freely, having liberty, freedom, safety. That society must contain love and peace, patience and tolerance, humanity and justice for one another, and religious harmony, like religious tolerance as well. So let's get started. Page number 42. You must have your pencils in your hand because you have to underline the hard words with meanings in Urdu and important MCQs. As you know that from now onwards we are having SLO based exams, and for SLO based exams we need to learn all like the translation and important MCQs from the chapter and important questions from the chapter as well. So let's get started. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, the city was inhabited by different sections of people. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, migrated का मतलब होता है हिजरत करना. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की, this city was inhabited by different sections of people. This city, ये शहर, was inhabited, आबाद था by different sections of people, लोगों के मुख्तलिफ गिरोहों से. They were the faithful followers of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam who had abandoned the ties of kith and kin. Now underline kith and kin, it's very important. They were the faithful followers of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. वो Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam के faithful कहते हैं अकीदा मंद, ठीक है. अकीदा मंद, बहुत ही नेक, अकीदा मंद फॉलोअर्स कहते हैं पैरवकार या साथी, बहुत ही अकीदामंद साथी थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हु हैड अबंडेंट, जो छोड़ चुके थे. अबंडेंट मीन्स हु हैड लेफ्ट. ओके, द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट मीन्स लेफ्ट, दैट इज़ लेफ्ट. ओके, जो कि छोड़ चुके थे. द टाइज ऑफ किथ एंड किन. किथ एंड किन इज़ अ फ्रेज दैट मीन्स रिलेटिव्स. ओके, kith and kin, that is a phrase that means relatives. So underline it. This may be asked in your MCQs. जो छोड़ चुके थे अपने रिश्तेदारों को, and followed him सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की. They were known as मुहाजिरीन और refugees. इनको पनाहगीर या फिर मुहाजिरीन कहा जाता था. पनाह गुज़ीर एंड मुहाजिरीन, और मुहाजिरीन कहा जाता था. द न्यू कॉन्वर्ट्स ऑफ मदीना हु हैड हेल्प रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू थिक एंड थिन. नाउ अंडरलाइन थिक एंड थिन, दिस इज़ अगेन अ फ्रेज. द न्यू कॉन्वर्ट्स ऑफ मदीना हु हैड हेल्प रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मदीना में जो नए इस्लाम कबूल करने वाले लोग थे, वहाँ पे जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, हु हैड हेल्प रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मदद कर चुके थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, थ्रू थिक एंड थिन, हर अच्छे बुरे हालात में. थिक एंड थिन, हर अच्छे बुरे हालात में. दिस इज थिक एंड थिन इज़ अ फ्रेज दैट मीन्स बैड और गुड सिचुएशन. वर नोन एज अंसार और हेल्पर्स. वो लोग जो मदीना में अभी नए आए हुए थे, मदीना में नया इस्लाम कबूल उन्होंने किया हुआ था, उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया. उनको अंसार और मददगार कहा जाता था. The other communities living in Medina were the idol worshippers and the Jews.
जो दूसरी आबादियाँ मदीना में रहती थीं वो आइडल वर्शिपर्स कहते हैं, बुत परस्त। आइडल वर्शिपर्स कहते हैं बुत परस्त, एंड द ज्यूज़ और यहूदी, वो बुत परस्त और यहूदी थे। Now in this very paragraph you may be asked about the people who migrated to Medina, like which type of people migrated to Medina. You can say the Medina was inhabited by different sections of people, okay, and all of them were faithful followers of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they left all their relatives, all their their properties for the sake of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and helped Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in all his good and bad times. And for good and bad times there's a phrase thick and thin. For relatives there's a phrase kith and kin. These are very important for your MCQs. Underline it please. And you may be asked that the people who were living there, like other communities, which type of community, other community people were there. So you may say like they were idol worshippers and the Jews. So I guess this paragraph is clear. Now let's move to next paragraph. In order to create harmony and cooperation, the Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam first abolished the tribal distinction and grouped the inhabitants of Medina under one general name, Ansar or helpers. In order to create harmony and cooperation, हम आहंगी और बाहमी ताउन पैदा करने के लिए द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट अबॉलिश्ड कहते हैं व्हेन यू फिनिश समथिंग कम्प्लीटली, ओके। सो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ख़त्म किया, ठीक है। अबॉलिश्ड मीन्स इरेडिकेट, ख़त्म कर देना। सबसे पहले हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म किया द ट्राइबल डिस्टिंक्शन। ट्राइबल डिस्टिंक्शन कहते हैं कबाइली इम्तियाज़। एंड ग्रुप्ड द इन्हेबिटेंट्स ऑफ मदीना, और मदीना के लोगों को, इन्हेबिटेंट्स मीन्स बाशिंदे या लोग, सिंपली लोग लिखिए आप लोग, और मदीना के लोगों को एक ग्रोह में डाल दिया अंडर वन जनरल नेम, जिनको एक आम नाम दिया, अंसार और हेल्पर्स, अंसार या मददगार। ही न्यू दैट goodwill and support of all the sections of the people were necessary for the creation of an Islamic state. वो ये जानते थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे दैट गुडविल कि अच्छी नीयत, नेक नीयती, एंड सपोर्ट और ताउन, नेक नीयती और ताउन ऑफ ऑल द सेक्शंस, तमाम ग्रोहों का, कि तमाम ग्रोहों की जो है नेक नीयती और ताउन की बहुत ज़रूरत है। ऑफ द पीपल वर नेसेसरी, वो लोगों की बहुत ज़रूरत है उनकी, फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, एक इस्लामी रियासत के बनाने के लिए, उसकी तख्लीक के लिए। क्रिएशन मीन्स बनाना या तख्लीक करना। कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि तमाम लोगों की जो नेक नियती और ताउन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस्लामी रियासत को बनाने के लिए। ही न्यू दैट टॉलरेंस वाज नेसेसरी व्हेन डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिव टुगेदर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि टॉलरेंस, बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिव टुगेदर, जब बहुत सी आबादियाँ, बहुत से लोग आपस में रहते हैं, एक साथ इकट्ठा रहते हैं। विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड, ऑब्जेक्टिव दैट इज़ सिनोनिम ऑफ एम और गोल, इन मकासद को अपने दिमाग में रखते हुए या इन मकासद को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन मकासद को अपने दिमाग में रखते हुए द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्राफ्टेड अ चार्टर। ड्राफ्टेड मीन्स मेड, क्रिएटेड, ड्रॉन, ठीक है। दीज आर द सिनोनिम्स। ड्राफ्टेड अ चार्टर विच इज़ जनरली नोन एज द मदीना चार्टर। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाक बनाया जिसको आम तौर पर मिसाक मदीना कहा जाता है। नाउ यू मे बी क्लियर दैट व्हाट इज़ दिस चार्टर। चार्टर इज़ बेसिकली दैट इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट in which about all the rights, all this is basically just like an act. Right now in our country we are having different acts related to different rights. So at that time that charter was just like an act that has to be passed, that has to be accepted by all the communities of the people who were living there, because they had to be tolerant towards one another, they had to be very cooperative toward one another, because the main purpose of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was to bring religious harmony, humanity, patience, love, peace, freedom and all that, okay. Now let's move to the other page, next page, page number 43. The main points of the charter are मिसाक मदीना के अहम नकात
ये हैं, ऑल द कम्युनिटीज़ साइनिंग द चार्टर वुड फॉर्म द कॉमन नेशनैलिटी। ऑल द कम्युनिटीज़, तमाम ग्रोह, साइनिंग द चार्टर, मिसाक पर दस्तखत करने वाले, वुड फॉर्म द कॉमन नेशनैलिटी, वो एक आम कौमियत बनाएंगे। इफ़ एनी सिग्नेटरी ऑफ द चार्टर वॉज अटैक्ड बाई एन एनिमी, अगर कोई भी दस्तखत करने वाले को, मिसाक पे दस्तखत करने वाले को कोई भी दुश्मन जो है उस पर हमला करता है, अदर्स वुड डिफेंड हिम, बाकी लोग उसका दिफा करेंगे कलेक्टिवली, मिलजुल कर। द मुस्लिम्स, द ज्यूज़ एंड अदर कम्युनिटीज़ ऑफ दिस रिपब्लिक शुड बी फ्री टू प्रोफेस देयर ओन रिस्पेक्टिव रिलीजन एंड परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज़। मुसलमान, द ज्यूज़, यहूदी एंड अदर कम्युनिटीज़ और दूसरी आबादियाँ ऑफ दिस रिपब्लिक, इस रियासत की, शुड बी फ्री, आज़ाद होने चाहिए, टू प्रोफेस देयर ओन रिस्पेक्टिव रिलीजन, अपने जो है अपने मज़हब का ऐलान करने के लिए, एंड परफॉर्म देयर रिलीजियस सेरेमनीज़, और अपने मज़हब के रसूमात की अदायगी में। Individual and personal offences of trivial nature of any non-Muslim who would be treated as such, and no general liability would fall on the community to which the offender belonged. Individual, infiradi, and personal or zati offences, जराइम of trivial nature, बहुत ही मामूली दर्जे के, of any non-Muslim, किसी भी गैर मुसलमान की या काफिर की, would be treated, ऐसे पेश आया जाएगा उसके साथ, as such, जैसे कि नो जनरल लाइबिलिटी वुड फॉल ऑन द कम्युनिटी, कोई आम जिम्मेदारी, जनरल लाइबिलिटी आम जिम्मेदारी, वुड फॉल ऑन द कम्युनिटी, उस ग्रोह पे नहीं होगी, उस पे पड़ेगी, टू विच द ऑफेंडर बिलोंग्ड, जिससे जुर्म करने वाला, ऑफेंडर मीन्स जुर्म करने वाला ताल्लुक़ रखता होगा, कि ज़ाती और इनफरादी और ज़ाती जराइम जो कि बहुत ही मामूली दर्जे के होंगे किसी भी गैर मुस्लिम के, वो ऐसे ही उसके साथ बर्ताव किया जाएगा कि उसकी जो आम जिम्मेदारी है वो उसकी उस गिरोह पे नहीं डाली जाएगी जिससे वो मुजरिम जो है वो ताल्लुक़ रखता है। The oppressed should be protected. This is very important for translation and for MCQs as well. The oppressed should be protected. मज़लूम की हिफाजत करनी चाहिए। Henceforth, अलावा इसके, मज़ीद इसके, bloodshed, खून खराबा, murder, कत्ल, and violence और तशद्दुद should be haram, abominable in Medina. मदीना में abominable, that is haram in English, मदीना में हराम होने चाहिए क्या चीज़ें, कि इसके अलावा इसके खून खराबा और कत्ल गारत और तशद्दुद जो है वो मदीना में हराम होना चाहिए। ऑल डिस्प्यूट्स, तमाम तकरार, तमाम तनाज़े, तमाम मसाइल, शुड बी रेफर टू फॉर डिसीजन टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तकरार, तमाम तनाज़े या तमाम मसाइल जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पेश करने चाहिए आखिरी फ़ैसले के लिए, जो कि अल्लाह के रसूल हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द चार्टर लाइज़ इन द फैक्ट, जो मिसाक की जो सबसे ज़्यादा अहमियत है वो इस हकीकत में है, दैट इट अनाउंसेस, कि ये ऐलान करती है, द great principles of civic equality, freedom of worship and religious and racial tolerance, कि इस मिसाक की जो सबसे बड़ी अहमियत है वो इस हकीकत में है, फैक्ट इस हकीकत में है, दैट इट अनाउंसेस द ग्रेट प्रिंसिपल्स, कि ये ऐलान करती है बहुत ही अजीम उसूलों की, ऑफ सिविक इक्वालिटी, शहरी बराबरी की, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, इबादत की आज़ादी की, एंड रिलीजियस और मज़हब की, एंड रेशल टॉलरेंस और नस्ली जो है वो बर्दाश्त की। This principle can also be seen in the perspective of the creation of Pakistan. This principle, ये उसूल, can be seen, देखा जा सकता है, in the perspective of the creation of Pakistan, पाकिस्तान की तख्लीक के मनाजिर में, ठीक है, उसके मंज़र में, कि जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के बनने में, कि ये जो उसूल है पाकिस्तान के बनने की मंज़र में भी देखा जा सकता है। Our founder, कायद-ए-आज़म, हमारे बानी कायद-ए-आज़म, clearly told his people in 1947, 1947 में अपने लोगों को उन्होंने साफ वाज़ह करके बता दिया, at the time of creation of Pakistan,
पाकिस्तान बनते वक्त यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, caste or creed, we are all equal citizens of one state. You might remember this very quotation, this very like narration that was said by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in unit number 3, like you may belong to any religion, you all are free to go to your temples, mosques and all other places of worship. This extract is from that reference. Okay, so at that very time Qaid-e-Azam told his people that you all are the equal citizens, okay, in this very state of Pakistan. So उन्होंने क्या बोला था कि यू में बिलोंग टू एनी रिलीजन, कि आप किसी भी मज़हब से, किसी भी ज़ात, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो. वी आर ऑल इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, हम लोग तमाम एक ही रियासत के बराबर शहरी हैं. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. So dear students, as I'm telling you about the synonyms, about the meanings, about different synonyms which I am using in place of a single word, I am using different words in Urdu and in English as well. So you have to note down these words on your books, okay? Next paragraph is, now in this paragraph we will have a lot of MCQs. In 1948, underline it, in 1948 the General Assembly of the United Nations unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights. 1948 में the General Assembly of the United Nations, अक़वाम मुत्तहिदा की आम असम्बली, unanimously इत्तफ़ाक़ राय रखते हुए adopted, अपनाया, the Universal Declaration of Human Rights, इंसानी हकूक़ का आलमगीर एलामिया. डिक्लेरेशन मीन्स एलामिया, यूनिवर्सल आलमगीर, ह्यूमन राइट्स, इंसानों के हकूक़. 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली ने इत्तफ़ाक़ राय रखते हुए इंसानी हकूक़ का आलमगीर एलामिया अपनाया. द डिक्लेरेशन प्रोक्लेम्स द रिलीजियस, पर्सनल, सिविक, पॉलिटिकल, इकनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. द डिक्लेरेशन, ये एलामिया, प्रोक्लेम्स, ऐलान करता है, द रिलीजियस, मजहबी, पर्सनल, ज़ाती, सिविक, शहरी, पॉलिटिकल, सियासी, इकनॉमिक, इक़्तिसादी या माशी, सोशल, माशरती या समाजी, एंड कल्चरल राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, और सकाफ़ती और इंसानों की सकाफ़ती हकूक़ की. कि ये एलामिया ऐलान करता है मजहबी, जो इंसानी हकूक़ हैं उसके मजहबी, ज़ाती, शहरी, सियासी, इक़्तिसादी, समाजी और सकाफ़ती हकूक़ का. द incorporation of the clauses of Madina Charter in the Universal Declaration of Human Rights by the UN shows that Islam is the greatest protector of human rights. The incorporation, तावन, of the clauses of Madina Charter, मिसाक़ मदीना की शिक्कों का जो है तावन या उसका जो शामिल होना है, in the Universal Declaration of Human Rights, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ का आलमगीर एलामिया में बाय द यूएन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, शोज़, ये दिखाता है, पेश करता है, दैट इस्लाम इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि जो इस्लाम है वो इंसानी हकूक़ का बेहतरीन या अज़ीम मुहाफ़िज़ है. So students, now you have to underline in 1948, like when did UN nation adopt the Universal Declaration of Human Rights, that is, which one is the year, that is 1948. And that another thing that is very important, that dash is the greatest protector of human rights, so Islam is the greatest protector of human rights. Now let's move to the another page. The Universal Declaration of Human Rights, इंसानी हकूक़ का आलमगीर एलामिया. Now we have to compare this Madina Charter points with the points of Universal Declaration of Human Rights. What does it mean? It means that those points which were in Madina Charter, those points were related to human rights. As Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he added all the important points related to human rights, related to religious tolerance and peaceful coexistence. All those points are right now included in Universal Declaration of Human Rights, okay, in 1948, okay, after long years. So this charter was approved on 10th December, underline it, okay. ये मिसाक कब
मंजर आम पर आया कब, उसका जो है वो मंजर आम पर आया ऑन 10 दिसंबर 10 दिसंबर 1948 को, एंड मेड पब्लिक, और आम कर दिया गया, ठीक है। There are 30 points in all. Now you have to underline it. There are how many points are there? There are 30 points. इसकी 30 अहम निकात हैं. A few are being mentioned here. उनमें से कुछ यहाँ पे जिनका तस्करा किया गया है. Number 1 is we are all free and equal. हम तमाम आज़ाद हैं और बराबर हैं. We are all born free. हम तमाम आज़ाद पैदा हुए. We all have our own thoughts and ideas. हम तमाम लोगों के अपने ख़यालात और अपनी सोच और अपने ख़यालात हैं. Thoughts अपनी सोच है, and ideas और अपने ख़यालात हैं. We should all be treated in the same way. हम सबको एक जैसे हम सब के साथ बर्ताव करना चाहिए. Don't discriminate. This is very important for your translation, board translation. Don't discriminate. इम्तियाज़ पैदा ना करो. इम्तियाज़ पैदा ना करो का मतलब होता है फ़र्क ना करो. What does it mean? Don't discriminate, like discrimination is here, racial discrimination is here, color discrimination is here, and money discrimination is here. People, some consider other people as poor. They are not having a soft corner for them. They think that these people who are poor, who are black, who are like from the other castes, they think those people inhuman. Okay, so don't discriminate means फ़र्क ना करो. These rights belong to everybody. ये जो हुकूक हैं वो हर एक इंसान से ताल्लुक़ रखते हैं. Whatever our differences are, चाहे हमारे कोई भी इख्तलाफात क्यों ना हो, ठीक है. We all have the right to live and to live in freedom and safety. We all have the right to live. हम तमाम लोगों को हक़ हासिल कि हम रहें, and to live in freedom and safety, और हम आज़ादी में और हिफाजत में रहें. Nobody has any right to hurt us or to torture us. किसी को भी ये हक़ हासिल नहीं है कि कोई हमें नुकसान पहुँचाए या फिर हमें अजियत दे. वी आर ऑल प्रोटेक्टेड बाय द लॉ. हम तमाम लोगों की हिफाजत कानून करता है. द लॉ इज़ द सेम फॉर एवरीबडी. और कानून तमाम लोगों के लिए यकसां है, एक जैसा है. इट मस्ट ट्रीट अस ऑल फेयरली. इसको हमें मुनसिफाना तरीके से हमसे पेश आना चाहिए, हमें बर्ताव करना चाहिए मुनसिफाना तरीके से, ठीक है. वी ऑल हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री. हम तमाम लोगों के पास ये हक़ हासिल है कि हम अपनी मुल्क की हुकूमत में, गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री, हम अपने मुल्क की जो है हुकूमत है उसमें हिस्सा लें. वी ऑल हैव अ राइट टू लीड अ गुड लाइफ. हम सबको हक़ हासिल है कि हम अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें. मदर्स एंड चिल्ड्रन, पीपल हु आर ओल्ड, माएँ और बच्चे, पीपल हु आर ओल्ड, वो लोग जो कि बूढ़े हैं, अनएम्प्लॉयड बेरोज़गार, और डिसेबल्ड और माजूर, एंड ऑल द पीपल हैव द राइट टू बी केयर्ड फॉर. और तमाम लोगों का, एंड ऑल अदर पीपल, और तमाम दूसरे लोगों का भी ये हक़ हासिल है कि उनका ख्याल रखा जाए. एजुकेशन इज़ अ राइट. तालीम एक हक़ है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसलेशन. एजुकेशन इज़ अ राइट. तालीम एक हक़ है. प्राइमरी एजुकेशन शुड बी फ्री. और इब्तदाई तालीम जो है वो मुफ्त होनी चाहिए. वी हैव अ ड्यूटी टू अदर पीपल एंड वी शुड प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स. वी हैव अ ड्यूटी टू अदर पीपल. हमारा जो है दूसरे लोगों की तरफ फ़र्ज़ है. एंड वी शुड प्रोटेक्ट देयर राइट्स. हमें उनके हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए. एंड फ्रीडम्स, और उनकी आज़ादी का. व्हाट डज दिस लास्ट लाइन मीन? दैट मीन्स के वी हैव अ ड्यूटी टू अदर पीपल. हमारा जो है दूसरे लोगों की तरफ फ़र्ज़ है. व्हाट डज इट मीन? कि दूसरे लोग कौन से वाले लोग? द पीपल हु आर इन माइनॉरिटी इन आवर कंट्री, लाइक क्रिश्चियंस, हिंदूज, बुद्ध, एंड ऑल अदर पीपल हु आर लिविंग हियर. वी हैव अ राइट टूवर्ड्स दैम of their freedom, of their safety, of their religious tolerance and all that. Okay, so we must be tolerant towards them. We must be we must protect themselves for their rights, for the freedom they are having. Okay beta, this was all about this chapter. I hope you all have understood this chapter very well. If you like this video, just do like the like button and leave your precious comment in the comment section, and do not forget to subscribe my channel. Jazakillah. Take care of yourself. Inshallah I'll upload next video in the next chapter. See you inshallah very soon. Allah Hafiz.